Big madrasa fatwa issued by the Maharashtra government. Now, the Fadnavis government has declared that henceforth madrasas will not be considered schools. Muslims are up in arms, saying that this is a highly objectionable, completely unfair thing being done by the Maharashtra government. The minister, though, says that he's trying to mainstream madrasa education. Here's more. Madrasas in Maharashtra will not be considered schools anymore, and close to 1.5 lakh students studying in seminaries have been declared out-of-school children in the state. The latest notification has triggered a massive row, but the Maharashtra government says the move is aimed at bringing madrasa students into the mainstream of formal education. जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जो स्कूल में नहीं जा रहे, सबका सर्वे हम कर रहे हैं। मदरसे को हम स्कूल मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते ये सवाल? जो आप मुझे एक आधा बच्चा बताओ जो मदरसे में पढ़ के आके इंजीनियर या डॉक्टर बना है। The proposal to de-recognize madrasas was sent out as early as 25th May. The letter written to the State Education Minister by Principal Secretary Minority Affairs has been accessed by India Today. The proposal has raised the hackles of Muslim leaders as well as the opposition parties in the state. This government has said that don't include this student as a school-going student, which is very unfortunate. This is a complete contradiction, but which is a deliberate contradiction in the light of recent decisions of the Maharashtra government which have been anti-minority. The recent order by the Maharashtra government regarding the madrasas, I think it's laughable, and they must know that madrasas are one of the oldest educational system of this country. In its defense, the BJP has blamed the previous Congress government in the state for the confusion. जो राइट टू एजुकेशन है, जो कि कांग्रेस पार्टी के समय में राइट टू एजुकेशन का एक कानून बना है, उसमें बहुत स्पष्ट तौर से मदरसों को शिक्षा के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इस वजह से ये इस तरह का कंफ्यूजन हुआ है। According to a 2013 report, there are nearly 2,000 madrasas in the state with around 1.5 lakh students. The curriculum involves a 7-year education in subjects including Arabic, Hindu, Urdu, maths and science. After this, students can either leave or opt for post-graduation in another 5 years. After opposing Muslim reservations and banning beef, this is the third decision by the BJP government in Maharashtra that is running into controversy. So the state government is saying that this move is aimed at bringing madrasa students into mainstream. The Devendra Fadnavis government will find it difficult to do away with the anti-Muslim tag. With camera person Mangesh Sawant, Kamlesh Sutar in Mumbai for India Today. I want to go across now to Dilip Kamble. He's the Minister for Minority Affairs in the government of Maharashtra. Mr. Kamble, thank you for joining us on the newsroom. Now, why has your government come out with this decision where you feel that madrasas cannot be considered schools? इसके पीछे, इस फैसले के पीछे आपकी सोच क्या है, कामले साहब? देखिए, 4 तारीख को महाराष्ट्र सरकार 4 जुलाई को एक सर्वे करने जा रही है। जो बच्चे जिनकी आयु 6 साल से 14 साल तक है और जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते, ऐसे सभी बच्चों का हम सर्वे करने जा रहे हैं ताकि आगे चल के ये बच्चे जिनके लिए जो स्कूल में नहीं जा रहे, उनके लिए कोई अच्छी योजना बनाई जाए। नहीं, पर सब प्रॉब्लम ये है ना कि आपने डिसाइड कर लिया कि जो बच्चे मदरसे जाते हैं वो स्कूल नहीं जाते। ये आपने फैसला कैसे कर लिया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, इन सब राज्यों में मदरसा बोर्ड का जो दर्जा है वो सीबीएसई के बराबर है। मदरसा एजुकेशन को स्कूल एजुकेशन, सीबीएसई एजुकेशन के बराबर माना जाता है। आपने मदरसों को आउट ऑफ स्कूल कैटेगरी में क्यों डाल दिया, सर? देखिए, कल का जो सब्जेक्ट है वो 4 तारीख को आने वाला जो सर्वे है, इसमें हम जो बच्चे, जैसे शुरू में मैंने कहा कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे उसका सर्वे हम करने जा रहे हैं। केवल मदरसे या गुरुद्वारा या चर्च ऐसा नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म का जो बच्चा है जिसकी आयु 6 साल से 14 साल है, जो स्कूल में नहीं जा रहा। नहीं, पर ये कौन डिसाइड करता है सर कि स्कूल क्या है? तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मदरसे जाते हैं उनको आपके हिसाब से वो स्कूल नहीं जाते,
वहां पे रिलीजियस एजुकेशन है सिर्फ, बाकी एजुकेशन। आप कभी गए भी हैं मदरसा, आपने देखा भी है कि अलग अलग किस्म के मदरसे, सबको आप एक बराबर नहीं मान सकते हैं? देखिए, प्रचलित रूप से जो शिक्षा पद्धति है, ऐसी जहां भी शिक्षा पद्धति लागू है, जहां पे इस तरह का एजुकेशन दिया जाता है, वही इसको स्कूल कहते हैं। मदरसों में तो प्रचलित रूप से शिक्षा जो दी जाती है, वो जिस तरह से स्कूल में दी जाती है वैसे दी नहीं जाती है। नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूलों में आके पढ़े, कहीं भी पढ़े, गांव में पढ़े, शहरों में पढ़े, कोई भी स्कूल में आके पढ़े। तो आप चाहते हैं, आप मानते हैं कि मदरसे स्कूल नहीं है? सीधा बोलिए कि आप मानते हैं कि मदरसे स्कूल ही नहीं है? नहीं मानते, नहीं, मदरसे स्कूल नहीं है। तो 1,48,000 1,48,000 वहां पे मदरसे हैं। आपका मानना है कि जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता है? जो नहीं है, जो प्रचलित रूप से एजुकेशन वहां दिया नहीं जाता है। नहीं, पर फिर उत्तर प्रदेश का क्या, मध्य प्रदेश का क्या, बंगाल का क्या, उड़ीसा का क्या? वहां पे तो मदरसा बोर्ड्स को अच्छे खासे रिस्पेक्ट दी जाती है और सीबीएसई के बराबर माना जाता है। हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक विभाग में या इसी देश में जितने भी लोग रहते हैं, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और देश की सेवा में। तो आप ये कह रहे हैं कामले साहब कि बाकी जितने भी राज्य हैं जो कि मदरसा एजुकेशन को सीरियसली लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं, रिस्पेक्ट से देखते हैं, वो सारे गलत कर रहे हैं? मैंने जैसे शुरू में कहा, मेरे सामने जो विषय है वो 4 तारीख के सर्वे का विषय है, और 4 तारीख को हम लोग महाराष्ट्र में पूरे जो बच्चे जिनकी आयु 6 साल से 14 साल तक है, जो स्कूल में नहीं जाते, ऐसे सभी बच्चों का हम सर्वे करने जा रहे हैं। नहीं सर, सर्वे से बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि सिर्फ सर्वे तक नहीं, इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है, सारे मुस्लिम कम्युनिटी में लोग फास्ट कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे फैसला आता है जिसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज है। बार बार कहना सिर्फ सर्वे है सर्वे, उससे बहुत बड़ा फैसला है ये, आपको भी इस बात का एहसास होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि महाराष्ट्र में कंपेटिटिव हिंदुत्व की भावना आ रही? ऐसे फैसले जिससे कि बाकी जो धर्म है, बाकी जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को नुकसान पहुंचे और कहीं ना कहीं जो भगवा एजेंडा है उसको लागू किया जाए। लग रहा है आपकी कोशिश तो यही है सर। ये आप कहां से कहां लेके जा रहे हैं बात को? मैंने सिर्फ इतना ही कहा आपको कि 4 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार एक सर्वे करने जा रही है। जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते उन सब बच्चों का डाटा हम इकट्ठा करेंगे, ताकि आगे चल के हमें इन बच्चों के पढ़ाई और शिक्षा के लिए अच्छी योजना बनानी है। इसके लिए हम सर्वे कर रहे हैं।